So we already discussed some Excel operation in the practical. I hope everyone understand that. Okay, we performed the practical regarding the static and the dynamic model in the our practical. Okay, so today also we are discussing here about the example of an Excel. Then after we are identifying this decision variable objective function, then the coefficient constraint, and then we are selecting the model. Then after providing all the things, then we run the model. Then model will provide the optimal solution to us. Okay. Now here we discuss the one example. हमने एक example discuss किया था. That is here. It is a product mix linear programming model. जिसमें हमने देखा था कि that is there is an MBI corporation which manufacture the two different types of computer which require the different budget and the different labor hours, and the goal of the company is to maximize the profit, that is how many computer of different type they have to manufacture, so they will maximize their profit. So here we discuss this problem in the last lecture, that is they are manufacturing the two different type of computer, that is CC7 and the CC8. Now CC7 requires the 300 days of labor, and its cost, it requires the cost material, that is the $10,000. Okay. Now the another computer requires the 500 days of labor, and its material costing is the $15,000. Okay. Now the profit contribution of CC7 is the $8,000, whereas the CC8 is the $12,000. Now the plant has the capacity of 2 lakhs working days. Okay, 2 lakhs working days per month. Okay, and the material budget is 8 millions per month. Okay, so they are providing here the capacity of everything. किसकी किसकी capacity provide की, working hours की capacity provide की, then their material budget capacity they are providing, again their requirement they are providing, that is the marketing requirement is market wants at least 100 CC7 and 200 unit of CC8 to be produced in each month. Okay, so their problem is to maximize the company profit by determining how many units of CC7 and how many units of CC8 should be produced in each month. Okay, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हमने इस प्रॉब्लम को, ना यहाँ पे हमको लीनियर प्रोग्रामिंग जो है उसमें हम एक मैक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और एक मीन का. ठीक है, जहाँ हमको प्रॉफिट रहेगा तो वी आर ऑलवेज ऑब्वियसली वी वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट, एंड मिनिमाइज कब रहेगा, वी वांट टू डिक्रीज द लॉस. तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे पूरा सिनेरियो यहाँ पे प्रेजेंट किया है. तो यहाँ पे जो लिमिट दी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं. तो यहाँ पे देखो हमारा गोल क्या है, दैट इज डिसीजन हाउ मेनी कंप्यूटर शुड बी बिल्ट नेक्स्ट मंथ, दैट इज हाउ मेनी CC7 एंड हाउ मेनी CC8. ये कौन से हो गए, हमारे डिसीजन वेरिएबल हो गए. सो हेयर वी आर आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल. सपोज हम उसको x1 और x2 बोलेंगे. हमारे दो डिसीजन वेरिएबल, x1 CC7 को रिप्रेजेंट करेगा और x2 CC8 को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट किसके किसके लिए दिए हैं, दैट इज फॉर द लेबर लिमिट, मटेरियल लिमिट एंड मार्केटिंग लोअर लिमिट. ओके, लोअर लिमिट देखो कि हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितना है, 100 एंड 200. मिनिमम कितना है, 1 एंड 1, दैट इज लोअर लिमिट. ओके, तो यहाँ पे देखो लेबर डेज स्पेसिफाई किया है. CC7 रिक्वायर 300 आवर्स लेबर डेज एंड CC8 500. द रिलेशन बिटवीन लिमिट दिया है कि कंपनी के पास कितने आवर्स है, दैट इज कंपनी हैविंग द लिमिट ऑफ 2 lakhs पर मंथ. ओके, 2 lakhs पर मंथ आर दे आर हैविंग द लिमिट, एंड इट्स रिलेशन जो डेवलपमेंट के लिए टाइम लगेगा, दैट इज कंबाइनिंग टाइम ऑफ CC7 प्लस CC8, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, जितना हमारे पास लिमिट है उससे कम या इक्वल चाहिए. हम लिमिट के बाहर जाएगा क्या, लिमिट के बाहर चला गया तो हमारे पास उतना कैपेसिटी ही नहीं है, तो हम उतने आवर्स दे सकते हैं क्या डेवलपमेंट के लिए? नो मैम. सो हियर दे आर प्रोवाइडिंग द रिलेशन. देखो यहाँ पे
अब यहाँ पे अगर मुझे लेबर कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, सपोज यहाँ पे X1 कंप्यूटर में एक मंथ में डेवलप कर रही हूँ, तो X1 डेवलप करने के लिए मैं यहाँ पे उसका लेबर आवर्स कैसे फाइंड करूंगी, X1 इंटू 300। समझ में आया? X1 इज द नंबर ऑफ कंप्यूटर डेवलप बाय CC7। ओके, तो यहाँ पे उसके लेबर आवर्स कैसे फाइंड करूंगी मैं, X1 इंटू 300 और प्लस X2 इंटू 500। ये दोनों को मिला के जितने कंप्यूटर आप डेवलप कर रहे हैं, वो जो टाइम पीरियड है, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2 लाख। समझ में आया? ये रिलेशन समझ में आया आपको? हाँ मैम। X1 मतलब नंबर ऑफ CC7, X2 मतलब नंबर ऑफ CC8। तो अगर मैं नंबर ऑफ CC7 और नंबर ऑफ CC8 डेवलप कर रही हूँ, तो उसका टाइम पीरियड, लेबर कैपेसिटी मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, 300 इंटू X1 प्लस 500 इंटू X2 एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 lakhs पर मंथ आर। ओके, वैसा ही मटेरियल का है। देखो, अगर मैं X1 कंप्यूटर डेवलप कर रही हूँ, तो X1 इंटू 10,000 प्लस 15,000 इंटू X2, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू $8 million। उसको जो लगने वाला मटेरियल कॉस्टिंग है, वो हमारा लेस देन और इक्वल टू $8 million होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर बना रही हूँ, लेकिन मेरे पास मटेरियल की एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा हम मटेरियल कैपेसिटी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम उसका भी कांस्टेंट यूज करेंगे। अब नंबर ऑफ यूनिट, यहाँ पे लोअर लिमिट दिया है कि नंबर ऑफ यूनिट मिनिमम 1 और मार्केट रिक्वायरमेंट कितना है, दैट इज मैक्सिमम 100। ओके, तो यहाँ पे देखो, दैट इज इसका रिलेशन देखो, यहाँ पे जो लोअर लिमिट दी है उससे ज्यादा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ओके, मतलब 1 से ग्रेटर और इक्वल टू 100 होना चाहिए। ये रिलेशन आपको समझ में आया है? यहाँ पे ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे हमने उसकी लोअर लिमिट दी है, अपर लिमिट दी है क्या? नहीं। तो यहाँ पे ये X1 की है लोअर लिमिट इज 1 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। लाइकवाइज दैट इज X2 की जो लिमिट है, इट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। यहाँ देखो प्रॉफिट बताया है, जो हमको प्रॉब्लम में दिया था कि अब अगर आप एक CC7 डेवलप करते हो, तो आपका प्रॉफिट कितना मिलता है आपको? 8,000। और यहाँ पे आप एक CC8 डेवलप करते हो, तो एक 1 CC8 आपको कितना प्रॉफिट देता है? $12,000। ओके, तो ये हमको मैक्सिमाइज करना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमाइज कैसा होगा कि 8,000 इंटू X1 प्लस 12,000 इंटू X2, इट शुड बी मैक्सिमाइज। हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने आप X1 डेवलप किए हैं, X1 आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है? एक कंप्यूटर पे 8,000 इंटू X1 प्लस 12,000 इंटू X2, दैट इज योर टोटल प्रॉफिट। ओके, ये सिनेरियो आपको समझ में आया? इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, मैं आपको एक्सेल शीट में ये बताने वाली हूँ। मैम X1 X2 की वैल्यू नहीं है क्या, कि बस एक्स हम वही कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा। X1 और X2 की जो वैल्यू है ना, हमारा पर्पस क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो मैक्सिमाइज होने के लिए हमारा जो गोल है कि हमको फाइंड करना है कि कंपनी ने कितने CC7 और कितने CC8 कंप्यूटर विद दिस कंस्ट्रेंट उसने डेवलप करना चाहिए, जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं एक्सेल का मॉडल, वो मॉडल हमको फाइंड करके देगा कि हमने कितने कंप्यूटर वहां पे डेवलप करने हैं। समझ में आया क्या जयश्री? यस मैम। हाँ, तो हमने यहाँ पे एक एक कंप्यूटर की कैपेसिटी दी है कि एक कंप्यूटर को मुझे CC7 अगर डेवलप करना है तो 300 आवर लगेंगे, CC8 करना है तो 500 आवर्स लगेंगे, और मेरे पास कैपेसिटी है 2 lakhs की, ठीक है, पर मंथ। और यहाँ पे मटेरियल ये दोनों को लगने वाला इतना है, मेरे पास मटेरियल की कैपेसिटी कितनी है? इतनी है। फिर मार्केट रिक्वायरमेंट कितनी है कि 100 CC7 चाहिए और 200 CC8 चाहिए। तो हमको अभी हम मॉडल यूज करेंगे, ये मॉडल मुझे बताएगा कि
कंपनी ने कितने CC7 और कितने CC8 डेवलप करना चाहिए विद दिस कंस्ट्रेंट, जितनी उनकी लिमिट है, वर्किंग आवर्स की जितनी लिमिट है, मटेरियल की जितनी लिमिट है, मार्केट की रिक्वायरमेंट जितनी है, उसको कंसीडर करके कंपनी ने कितने कंप्यूटर डेवलप करना चाहिए जिससे उसका प्रॉफिट पर मंथ मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट पर मंथ। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? यस मैम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने अभी बताया कि डिसीजन वेरिएबल, देखो डिसीजन वेरिएबल हमारा क्या है, x1 एंड x2 है, जो मैं आपको अभी बता रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे x1 और x2 हमारे डिसीजन वेरिएबल है, दैट इज यूनिट ऑफ CC7 एंड यूनिट ऑफ CC8। मैथमेटिकल रिलेशन, दैट इज वी नीड टू मैक्सिमाइज द z, प्रॉफिट को क्या बोला है इन्होंने, z बोला है। ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट क्या है, मैंने आपको भी बताया कि एक CC7 से $8,000 मुझे मिल रहे हैं, तो x1 नंबर ऑफ CC7 से मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, 8,000 इंटू x1 प्लस 12,000 इंटू x2। ओके, वो x1 और x2 की वैल्यू हमको फाइंड करके देगा कि कंपनी ने कितने x1 और कितने x2 कंप्यूटर डेवलप करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो कि हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड किया, वी आर फाइंडिंग द प्रॉफिट इन सच वे। यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया है हमको कि मुझे x1 के लिए एक CC7 के लिए 300 आवर्स लगते हैं, तो मेरे आवर्स x1 इंटू 300 प्लस 500 इंटू x2 विच शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 lakhs आवर्स है। ओके, ये कंस्टेंट है ना हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, 2 lakhs। हमारे पास अवेलेबल मटेरियल कितना है, $8 million। हमारी मार्केट रिक्वायरमेंट x1 की कितनी है, 100। हमारी मार्केट रिक्वायरमेंट x2 की कितनी है, 200। तो ये क्या स्पेसिफाई किए हमने, यहाँ पे कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई किए हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया आप सभी को? यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? क्षितिजा, मयूरी, जयश्री और कौन है लेक्चर में? यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? अभी देखो यहाँ पे उन्होंने ये जो मॉडल बताया है, ये एक्सेल में एक सॉल्वर बोल के एडिंग्स है, उसके थ्रू उन्होंने ये मॉडल डेवलप किया है। देखो, वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग सॉल्वर, दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये जो पिंक कलर दिख रहा है ना आपको, दैट इज दिस कलर मीन्स नॉट गिवन, ये फिगर्स हमने कैलकुलेट किए हैं। ओके, ये गिवन नहीं है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने जो भी फिगर यूज किए है ना, तो ये फिगर उन्होंने 1000 से डिवाइड करके छोटे मतलब फिगर्स को मिनिमाइज किया है। ओके, यहाँ पे मतलब जो 300 जो टाइम लगने वाला था ना, तो वो 0.3 हो गया, देखो 0.5 हो गया। ओनली दे आर मिनिमाइजिंग द फिगर्स। ओके, बहुत बड़े फिगर्स आएंगे तो उसके लिए हमने उसको बाद में जब भी जो भी फिगर आएगा हम उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके हमको प्रॉपर आंसर मिलेगा। दैट फिगर्स इज इन लैक्स एंड करोड़। ओके, तो यहाँ पे देखो ये समझ में आया क्या? तो यहाँ पे ये गिवन है, 300 कंस्टेंट दिए है, देखो 300 आवर्स फॉर x1, 500 आवर्स फॉर x2, 10,000 फॉर डेवलपिंग ऑफ x1 and 15,000 फॉर x2, लोअर लिमिट ऑफ x1, लोअर लिमिट ऑफ x2, और ये उसके कंस्टेंट दिए है, लेस देन और इक्वल टू 20 lakhs जो था, सॉरी 2 lakhs जो था ना, उसको हमने 200 कर दिया, इसके आगे के 3 zeros निकल गए। ओके, फिर यहाँ पे देखो ये हमारा 8 million था, तो हमने इसको 8,000 कर लिया, 100 and 200 एज इट इज। समझ में आया कि ये अभी मैं आपको एक्सेल शीट में ये सॉल्व करके बताऊंगी। ये सिनेरियो समझ में आया? ये फिगर्स कैसे आते हैं ये हम देखेंगे। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ऑप्टिमल, यस मैम हाँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन वेरिएबल क्या है मैम? हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ। ऑप्टिमल सॉल्यूशन वेरिएबल जो है कि कितने x1 और कितने x2 डेवलप करना चाहिए। जो डिसीजन वेरिएबल है ना हमारे x1 और x2, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन वेरिएबल हमारा है कि हमको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, प्रॉफिट हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन वेरिएबल है।
देखो ये डिसीजन वेरिएबल है x1 एंड x2, ठीक है। प्रॉफिट यूनिट, दिस इज द प्रॉफिट वी आर हैविंग फ्रॉम x1 एंड x2। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये हम फाइंड करेंगे कि कितने x1 डेवलप करना चाहिए, कितने x2 डेवलप करना चाहिए, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये प्रॉफिट है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन वेरिएबल क्या है, प्रॉफिट है। ओके, क्लियर सभी को? यस मैम। अभी मैं ये सेम नेम यूज करके आपको एक्सेल शीट में बताती हूँ कि सॉल्वर से हम ये कैसा, यू नो अबाउट द सॉल्वर इन एक्सेल शीट? नो मैम। नोबडी नोस, ओके, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, मैं आपको फिर से ये बताती हूँ नीचे सॉल्व करके। देखो ये यहाँ पे हमने डिसीजन वेरिएबल लिया है जिसमें हमने कोई भी फिगर यहाँ पे नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिया है, x1 से मिलने वाला प्रॉफिट और x2 से मिलने वाला प्रॉफिट। देखो अब ये फिगर हमको फाइंड करना है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे, देखो मैंने ये जो फील्ड है ना यहाँ पे टोटल जो हमारा कंज्यूम है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉर्मूला दिया है। अब फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जो भी ये कौन से सेल है जिसमें हमको चाहिए फिगर F8 है, ओके। टोटल प्रॉफिट क्या है, 8, कौन से सेल में है, F9 में है। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ हमारे डिसीजन वेरिएबल जो x2 है वो कौन से सेल में आएगा, G8 में। और G8 से हमको एक x2 से मिल रहा है 12 ये प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट मेरा कैसा आएगा, देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगी F8 वो जनरेट करके देने वाला है हमको। देखो F8 पे आया, ब्लू पॉइंट, ब्लू स्क्रीन दिख रहा है आपको, ब्लू वहां पे वो सेल ब्लू कलर में दिख रहा है आपको। यस मैम। यस मैम। F8 लिया है मैंने और यहाँ पे मैं लूंगी, उससे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है F9, ओके। तो ये मेरा प्रॉफिट किसका कैलकुलेट हो गया, जितने x1 हम कैलकुलेट करेंगे उतने, उससे हमको हर एक x1 से मुझे 8, यहाँ पे हमको 8000 मिल रहा था, हमने 1000 को रुपीज में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा x1 का प्रॉफिट हो गया, प्लस मुझे दूसरे इससे प्रॉफिट मिल रहा है G8 क्या है, नंबर ऑफ x2 कंप्यूटर, ओके। उससे मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज G9, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला दे दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे, ये तो मुझे कैलकुलेट करके देने वाला है, बट आपके समझने के लिए मैं यहाँ फिगर्स डाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो मुझे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, 64 उसने दिया।
8 2 16 और 12 4 48, 48 प्लस 16 64 मिल गया। तो ये अभी हमको वो सॉल्व करके देगा। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम बराबर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो गिवन इंफॉर्मेशन दे दी कि लेबर मुझे कितना है यहाँ पे, कि एक x1 के लिए मुझे 0.3 लेबर लग रहा है और एक x2 डेवलप करने के मुझे 0.5 लेबर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने टोटल लेबर आवर्स जो है मेरे वो लेस देन चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है। क्या फॉर्मूला है हमारा? F8 अभी हमारा आने वाला है। F8 इंटू कितने लेबर आवर्स लगेंगे, F8 में जो फिगर आएगा इंटू उतने लेबर आवर मुझे यहाँ पे लगेंगे। तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला देंगे, देखो इक्वल टू नंबर ऑफ लेबर आवर्स कितने लगेंगे मुझे, F8 इंटू मैं ये फिगर में, ये सेल में जो फिगर है मैं वही यहाँ पे ले लूंगी। ठीक है, 11 प्लस हम लेंगे यहाँ पे दूसरा हमारा x2 कौन से इसमें है, सॉरी यहाँ का फिगर लेंगे मैं G8 इंटू G11। ठीक है, ये हमने यहाँ पे टोटल आवर्स के लिए फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, और इसकी लिमिट कितनी है हमारे पास, 200 आवर्स की लिमिट है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो आवर्स है 200 क्या है, एक्चुअल ये 2 लाख है, बट इसको हमने हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया, 30 इसके कम कर दिया। ठीक है, वैसा ही फॉर्मूला हम यहाँ पे बजट के लिए भी लिखेंगे। ठीक है, बजट के लिए क्या फॉर्मूला आएगा फिर मेरा यहाँ पे, दैट इज पहला मेरा बजट आएगा F8 को डेवलप करने के लिए, F8 इंटू कितना बजट है हमारे, बजट लग रहा है हमको इसके लिए, दैट इज 10। ठीक है, वो यहाँ पे इफ यू आर नॉट गेटिंग यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी। ओके, कोई भी अनम्यूट होके मुझे पूछ सकता है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। क्लियर? फिर मैंने प्लस लिया यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा हमारा आएगा F में G8 इंटू ये आएगा G12। ओके, और बजट का लिमिट कितना है हमारे पास, बजट का लिमिट बोलो, यस आई एम ऑडिबल? यस मैम। हाँ, बजट का लिमिट कितना है बोलो, 8 मिलियन है ना, तो हमने यहाँ पे उसको 1000 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैपेसिटी फाइंड करेंगे कि हमको यहाँ पे हम कैपेसिटी देखो कैसे निकालेंगे। सेम यहाँ पे हम उसको ये सेल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे लोअर लिमिट के साथ। ठीक है, और इसका हमारा कैपेसिटी है 100। ठीक है, कितना है, मार्केटिंग नीड कितनी है x1 की, 100। फिर हम यहाँ पे इसकी कैपेसिटी फाइंड करेंगे, सॉरी इक्वल टू यहाँ पे ये सेल लेंगे इनको हम करेंगे इसकी लोअर लिमिट, और इसकी हमारी कैपेसिटी है 200। मैम हाँ, वो लिमिट कैसे लिया आपने? ये जो मुझे लिमिट है बेटा प्रॉब्लम में दिया है कांस्टेंट में, ये देखो यहाँ बताती हूँ मैं। ये लिमिट दिया है, ये देखो लिमिट, लेबर लिमिट कितनी है हमारी, 2 लाख था, तो हमने इसको डिवाइडेड बाय 1000 किया तो कितना रह गया, 200। हाँ क्लियर? फिर मटेरियल हमारा कितना था, 8 मिलियन था, इसको भी हमने डिवाइड किया 1000 से, कितना रह गया, 8000। ठीक है, मार्केटिंग नीड 100 एंड 200। समझ में आया बेटा? ओके मैम। क्लियर है? हाँ
देखो ये हो गया हमारा। देखो यहाँ पे मैंने ये लिमिट दे रखा है, ठीक है। ये लिमिट हमारा यहाँ पे हो गया। अभी अभी यहाँ पे 0 बता रहा है ना, ये आपको ये फिगर वो कैलकुलेट करेगा अभी, ठीक है। अब इतना सब हो जाने के बाद हम देखो यहाँ पे, अब ये सॉल्वर जो मैं आपको बताया है मैंने आपको, तो ये जो सॉल्वर होता है ना, देखो हम अभी सपोज होम में हैं, तो यहाँ पे अगर सॉल्वर आपके पास इंस्टॉल है तो वो आपने डेटा को यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे देखो सॉल्वर दिखता है, दिख रहा है सॉल्वर। यस मैम। हाँ, और अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने क्या करना है, देखो इसमें जाना है, उसके बाद ये एक्सेल ऑप्शंस में जाना है। एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद ये एडिन्स दिख रहा है आपको, ये एडिन्स में जाना है, एडिन्स, और उसके बाद यहाँ पे एडिन्स करके ओके करना है। मेरे इसमें ऑलरेडी है बोल के वो बता रहे हैं, नहीं तो आप ओके करने के बाद वहां पे आपको सॉल्वर और वो ऑप्शन आते हैं, वो क्लिक करके यहाँ पे आपने उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ओके मैम। उसका प्रोसेस अब देखो, अब हम यहाँ पे सॉल्वर में जाएंगे। अब हम यहाँ सॉल्वर जाने के बाद वो यहाँ पे मुझे पूछेगा सबसे पहला सेट टारगेट सेल। तो टारगेट सेल क्या है हमारा, हमको चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करते से ही वो सेल का नंबर यहाँ पे आ गया। समझ में आया आपको? मैंने जो हाँ, मेरा मैम। टारगेट सेल है उस पे मैंने ऐसा क्लिक किया यहाँ पे, so it will show the target cell H9 here. Okay, then after that you are able to solve the linear programming max and min. तो हमारा हमको किससे सॉल्व करना है, मैक्स से सॉल्व करना है, हमको मैक्सिमाइज करना है ना प्रॉफिट, तो हमने यहाँ पे मैक्स निकाल दिया। समझ में आया? ये हमने टारगेट सेल यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर मैक्स को सेलेक्ट किया। अब मुझे सेलेक्ट करना है चेंजिंग सेल। ओके, चेंजिंग सेल को मुझे सेलेक्ट करना है। तो मेरे चेंजिंग सेल देखो, ये 2 सेल है मेरे, जिसमें मेरे वैल्यूज आने वाले हैं, x1 कितना डेवलप करना है और x2 कितना डेवलप करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेंजिंग सेल को सेलेक्ट किया। क्लियर? समझ में आया सभी को? ओके। यस मैम। वो 2 सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। उसके बाद है मेरा देखो यहाँ सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, यहाँ पे मुझे कंस्टेंट देना है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे कंस्टेंट देंगे, ऐड कंस्टेंट करेंगे हम। तो पहले मेरा ये सेल आएगा, ठीक है, जहां पे हमें कंस्टेंट देना है लेबर। वी हैव द लेबर आर विच शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी लेस देन और इक्वल टू का साइन है, सॉरी ऑलरेडी सेलेक्ट था, नहीं तो आप यहाँ से साइन सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने दिया 200। समझ में आया? यस। फिर उसको ओके करना है, ठीक है। अब हमको दूसरा कंस्ट्रेंट देना है, यहाँ पे ऐड करना है। ये मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट है, दैट इज H12 में मैं दूंगी। तो मेरा बजट इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8000। यहाँ पे मैंने उसको 8000 दिया, ठीक है। फिर मैंने उसको ओके किया। अब मैं थर्ड कंस्टेंट यहाँ दूंगी कि मुझे लोअर लिमिट दिया है, मैक्सिमम लिमिट मुझे कितना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे उसको ऐड करना है, ऐड। तो यहाँ पे ये थर्ड वाला मैं ऐड कर रही हूँ। और देखो ये मुझे ग्रेटर देन चाहिए, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी कैपेसिटी है उसकी, 100। ओके, वो मैंने यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद हम इसका लिमिट देंगे, ये मुझे ऐड करना है, ऐड, ठीक है, H14 इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। ठीक है, हो गए हमारे चारों कंस्ट्रेंट, प्रॉपरली दिए हमने। वर्किंग आवर्स जो है हमारे पास, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200 मीन्स 2 lakhs। ओके, नाउ हियर मटेरियल इज लेस देन और इक्वल टू 8 million। यहाँ पे 8000 दिया है बट एक्चुअली ये कितना है, 8 million। और हमारा जो x1 की कैपेसिटी इट शुड बी ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। एंड x2 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। हो गया। अब ये सॉल्व नाम का
टैब है उस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो इसने हमको यहाँ पे सॉल्व करके फिगर्स दिए हैं। ओके, बट ये फिगर यहाँ पे थोड़े इससे चेंज आए हैं, क्या क्या रॉन्ग हुआ है? देखो इसमें एक्चुअली प्रॉपर फिगर आए हैं, F8 इंटू F12, फॉर्मूला बराबर दिया क्या हमने, F8 इंटू, मैम वहाँ पे 12 है, यहाँ 8 पे है। हाँ तो यहाँ 12 में होगा वो, फिर मैं देखती हूँ उसको। ये 12 में है इसलिए 12 आया है। लेबर लेबर बराबर दिया हमने F8 इंटू F11 G8 इंटू G11। देखो ये बराबर आया हमारा F8 इंटू F11 G8 इंटू G11, ये बराबर आया। यहाँ पे हमारा 12 में ही है ये, तो हमने F8 इंटू F9 और G8 इंटू G9, ठीक है, ये बराबर है ये 8 इंटू F11 3। यहाँ जो बुक में दिया है वही फिगर आए हैं, यहाँ पे चेंज क्यों हो गए, ये मैंने अभी सॉल्व किया। F8 इंटू F11 G8 इंटू G11। फिगर्स तो सब बराबर है, हमारे फॉर्मूला भी बराबर है। अभी देखो, अभी बराबर आ गए। एक मिनट,
मैम प्लस यस बेटा, प्लस है मैम दोनों के बीच में ना। एक मिनट। हाँ, इसके बीच में, हाँ प्लस है राइट, प्लस। F into F11. This is F11. Okay. Then G8 into, बोलो, म्यूट करें ना मम्मा, वो नल का पानी था ना। एक मिनट। क्या बोल रहे हो? नल का पानी। ये फॉर्मूला बराबर है हमारा F8 इंटू F12 G8 इंटू प्लस G8 इंटू ये it is G12, it is F12, it is बराबर है, कहाँ गलत हो रहा है, F8 इंटू F13, it is right, then G8 इंटू G14, and I am taking the same value, then what is, देखो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है यूजिंग सॉल्वर। सो वॉट एवर द फिगर्स दे आर गिवन इन द बुक, ये एग्जाम्पल में जो मैंने फिगर्स दिए हैं उन्होंने सॉल्व करके, आई हैव सॉल्व इट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ओनली। देखो फॉर्मूले से वो फिगर्स आए हैं हमारे पास। यहाँ पे हमने कांस्टेंट दिए हैं, दीज आर द सेम कांस्टेंट वी आर प्रोवाइडिंग इन दैट शीट आल्सो। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। F8 इंटू F14, सेम यही कांस्टेंट हमने यहाँ पे दिए हैं। देखो सेम कांस्टेंट है, हमने दिया है कि जो आर्स वर्किंग आर्स लग रहे हैं x1 के डेवलप के लिए और जो वर्किंग आर्स लग रहे हैं x2 के डेवलप के लिए, वी शुड बी लेस देन, तो इट गिव्स द लेस देन। ओके, बजट भी लेस देन दिया है। उसके बाद यहाँ पे 100 कंप्यूटर उसने कहा है कि हमने सिर्फ ये फिगर हमारा रॉन्ग आ रहा है, इट शुड बी ग्रेटर देन 200। ओके, इट इज ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन का ही दिया है ना यहाँ पे, तो उसने वो दिया है और हमारा प्रॉफिट इतना आया है, बट इट शोज द डिफरेंट फिगर्स। यहाँ पे भी उसने सॉल्व किया है लेकिन पूरे कांस्टेंट हमारे प्रॉपर आ रहे हैं। जो हमारा लेबर आ रहे इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200, तो प्रॉपर आया है यहाँ पे। बजट भी हमारा 8000 से लेस देन या इक्वल टू चाहिए, वो भी आ रहा है, इट इज इक्वल टू 100 और इट इज इक्वल टू 400। बट यहाँ पे मैंने सेम वही सॉल्व किया है, तो इसने जो बुक में फिगर आए हैं दैट सेम फिगर इट गिव्स हियर। ओके, यहाँ पे वही फिगर दिए, देखो यहाँ पे पता है उसने, देखो
यही आया 3.33 फॉर x1 एंड 200 फॉर x2। देखो यहाँ पे भी वही आया है 3.33 फॉर x1 एंड 200, और प्रॉफिट जो आया है 5066, वही प्रॉफिट यहाँ पे भी आया है। देखो प्रॉफिट हमारा क्या है 5066, दिख रहा है सभी को? यस। सो सेम हियर, मैं उसको और देखती हूँ कि उसमें क्या है। सेम फिगर, सेम फॉर्मूला इज गिवन देयर, बट मे बी इट्स ऑल यहाँ पे अलग टेक्निक से दिया है। यहाँ पे उसने बताया है कि 333 x1 डेवलप करना चाहिए और x2 हमको 200 डेवलप करना चाहिए, और इसमें उसने सॉल्यूशन दिया है कि 100 x1 करना चाहिए और 400 x2 करना चाहिए। सो वी आर एबल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ओके, सेम कंस्टेंट वी आर गिवन। सो ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द सॉल्वर। सॉल्वर का समझ में आया आपको? कंस्टेंट कैसा देना है, इसमें हमने देखो पूरे कंस्टेंट दिए हैं। यहाँ पे हम चेंजिंग सेल देते हैं, जो x1 और x2 के हमारे चेंजिंग सेल है वो दिए है हमें F8 और G8। ये हमारा F8 सेल है और ये हमारा G8 सेल है, ठीक है। और यहाँ पे हम टारगेट सेल देते हैं जिसमें हमको प्रॉफिट चाहिए, ये हमारा प्रॉफिट है। ओके, एक बार और हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, गिविंग द सेम सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे ऐसा यूज करके हमने, उन्होंने ये जो प्रॉब्लम बताया है लीनियर प्रोग्रामिंग का, सॉल्वर के थ्रू यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे दिया है वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग सॉल्वर। ओके, सो इन दिस वे द सॉल्वर गिव्स द सॉल्यूशन। यहाँ पे उन्होंने टेक्निकल नेम यूज किए हैं, प्रॉफिट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो हमने यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल के लिए यूज किया ना x1 x2, उन्होंने बताया है क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन वेरिएबल प्रॉफिट के लिए यूज किया है, ठीक है। और ये कंस्टेंट यहाँ बताए हैं कि कितने वर्किंग आवर यूज करेगा, कितना टोटल बजट यूज करेगा और कितना डेवलप करेगा। x1 333 डेवलप करेगा और x2 200 डेवलप करेगा। और वही प्रॉब्लम हमने यहाँ पे फिर से सॉल्वर से सॉल्व किया, तो उसने हमको एक सॉल्यूशन दिया कि 100 x1 डेवलप करेगा और 400 x2 डेवलप करना चाहिए, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। बट इससे बेटर सॉल्यूशन कौन सा है? ये वाला है, क्योंकि इसमें हमको प्रॉफिट 5066 मिल रहा है। यहाँ पे हमको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 4800 मिल रहा है। समझ में आया प्रोसेस सॉल्वर का? ओके, सबने अटेंडेंस मार्क की? हाँ मैम। मैं ये प्रॉब्लम को एक बार और देखती हूँ कि क्यों अलग सॉल्यूशन आया है। ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर। Okay, if you mark your attendance, then leave the class.